Hi, good morning, everybody. So, in today's session, we are going to resume working on our project AI powered risk assessment for financial compliance. Okay. And before we get started, just wanted to give you a quick, review of what are we trying to do. So, we are building a risk compliance project for, a Deloitte based, customer case study. So this is what is the project which we are going to implement in this particular program. Okay. So the objective is to build a generative AI model for compliance prediction, and the name of the project is AI powered risk assessment for financial, compliance. So as you all are aware, we have to cover the following, where we have to understand a bank transaction risk, AI risk predictions, policy grounded explanations, human verification, and we have to give them audit ready decisions. This was the project documentation which we have to implement step by step and understand, what needs to be done, how we are going to implement it, what would be our solution architecture, what are we going to do. Okay, I think I've shared this document with you. You have this document available with you. Okay. In case if it is not there, I'm going to send it once again. Okay. So before getting on to this particular project and start implementing this particular project step by step, what we are trying to understand is we are trying to understand what is the exact problem which needs to be solved. Okay. So currently we are in the problem discovery phase. We are in the discovery phase where we are trying to discover how RBI and what all policies exist in order to handle financial compliances. Okay. And once we are done with the discovery, then we are going to get into preparation of the data, and then we are going to get started with our GenAI implementation step by step. Okay. So this is what we are going to implement. I believe this is clear. This is our overall project document, which we have to implement step by step. Okay. Yes. And now we were here in the previous discussion, in the previous session, we have reached till here that we were addressing RBI KYC master direction, where uh, we were addressing, let's see how banks define how they identify customers, how they classify risk, how they monitor transactions, how they retain records, and how they escalate suspicious activity. Okay. Till here, we have reached. Now, what are the other public rules which are available? So there is another rule layer, which is a PMLA layer. We call them as PML rules, which provide the AML CFT legal base for due diligence, suspicious transactions, and record management. Okay. So before we move forward, let me tell you what what these rules are. So let's quickly get to google.com. Okay. And we're going to discuss the PMLA rules. Okay. This is prevent money laundering. This is very important for you all to understand. Okay. Now, so one of the biggest problems is, apart from understanding the users and understanding their transactional risks, ठीक है, उसके बाद में जो कैटेगरी है वो है how will you be able to prevent money laundering and what is prevention of money laundering act. Okay, इसके बारे में हमें समझना है. ठीक. And what is AML CFT, इसको भी डाल देते हैं. ठीक है. So this is your anti money laundering and countering the financing of terrorism. Countering the financing of terrorism. ठीक है. CFT stands for काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म. टेररिज्म एक्टिविटी के लिए जो फंड्स यूज होते हैं. ओके. तो आप समझ रहे हो कि जो प्रॉब्लम सिस्टम आप डिजाइन करने वाले हो एक जेनएआई सॉल्यूशन को यूज करके, इट विल बी अ रियल थिंग. ओके. इट विल बी सॉल्विंग एंड हैंडलिंग रियल प्रॉब्लम्स एंड रियल चैलेंजेस. तो वो रियल चैलेंजेस के लिए प्रोडक्शन लेवल पे इंप्लीमेंटेशन करने के लिए यू नीड टू हैव गुड स्किल्स. ओके. Tarun, you can mute your mic.
नॉइस कमिंग। ओके, नाउ सो अब क्या हो रहा है हमारे पास? तो जो सेकंड कैटेगरी है उसमें हम ये समझने जा रहे हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्या है ये पीएमएलए? पीएमएलए 2002, गो हैव अ रीड अबाउट इट। सबसे अच्छी बात क्या होगी? यू बिकम अ डिफरेंशिएटर, क्योंकि आपका जो पीयर ग्रुप है उसको कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, सो ही इज नॉट अवेयर। एंड बैंक्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। और जो बैंक्स को कंपनीज, आईटी कंपनीज सर्विस कर रही हैं, उनके लिए अगर कोई ऐसा कैंडिडेट उन्हें मिल जाए जो समझता है इस लेवल पे, डीप लेवल पे प्रॉब्लम, जिसको इतना एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली ही वुड बी अ प्राइम कैंडिडेट फॉर देम। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट, आपका रेज्यूमे बोलना चाहिए बढ़िया तरीके से कि ठीक है, आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस इन माय प्रोजेक्ट, ओके, व्हिच विल मेक यू मोर रिलेवेंट। नाउ इसके बाद में क्या है? एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स 2005, इसको कहते हैं पीएमएल रूल्स। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रूल्स, वन इज पीएमएलए विच इज द एक्ट, एंड देन देर इज पीएमएल रूल्स। सो ये क्या है? दीज फॉर्म्स इंडिया कोर लीगल फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स बने हुए हैं। ओके, सो अब एआई को वो रूल्स इंप्लीमेंट करने चाहिए, एआई को वो ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। अभी तो कोई मैनुअली उन रूल्स को अप्लाई करता होगा। जब आप टेक्नोलॉजी से अप्लाई करोगे, इवेंचुअली इट विल बी फास्टर, बेटर, मोर एक्यूरेट, ओके, एंड मोर मीनिंगफुल। सो ये दोनों रूल्स क्या करते हैं? दे मैंडेट फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, established strict obligations for businesses, and empower authorities to confiscate illegally obtained wealth. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो ये काम करेगी, ये वाले रूल्स हमें, इसको आगे हम समझेंगे कि क्या है पीएमएलए रूल्स, और कैसे हम उसको जेनीआई सिस्टम्स में अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें कलेक्ट करके अपने सिस्टम को ट्रेन करना है। ठीक है, सो दैट आवर सिस्टम गेट्स टू नो। So now the second concept which we are focusing towards is Prevention of Money Laundering Act and Prevention of Money Laundering Rules. ठीक है, these rules you should be aware of. So अब यहाँ पे हमें क्या होगा कि we have to provide the AML and CFT legal base for due diligence. ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इसको रोकने के लिए या इसको रिव्यू करने के लिए हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हम इसको क्यों यूज करेंगे? हम इसको यूज करेंगे ड्यू डिलिजेंस के लिए। ठीक है, हम इन रूल्स को यूज करेंगे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने के लिए और रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो हमारे पास कुछ आरबीआई के डायरेक्ट केवाईसी मास्टर डायरेक्शन डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में हमारे पास पीएमएल रूल्स के डॉक्यूमेंट हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे। दीज विल बी द डेटा सेट जो हम अपने जनरेटिव एआई सिस्टम के लिए यूज करेंगे। ओके, क्लियर? अब जैसे आप बैंक में भी जाते हो या बैंक से पहले अगर आप जैसे एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो ये आईटी ऑर्गेनाइजेशन बैंक से ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है कि आपकी क्या पॉलिसीज हैं। आप हमें अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट शेयर करो, हम उसके बेसिस पे एआई सिस्टम को ट्रेन करेंगे जो फिर आपकी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा, एंड इट विल इंश्योर कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं दे फॉलो योर कंप्लायंस पॉलिसीज। ओके, एंड एनी ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आ रही हैं वो सारी फ्लैग होकर के आ जाएं। ठीक है, हमें तुरंत पता लग जाए। तो इससे किसका किसका काम आसान हो गया? सीबीआई का काम आसान हो गया, आईबी का काम आसान हो गया। ठीक है, जितने भी ये रॉ ग्रुप्स हैं जो टेरर फाइनेंसिंग रोकते हैं, अभी आप लोगों ने पीछे देखा होगा बहुत सारी मूवीज में आजकल आ रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की प्रॉब्लम्स होती हैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, मतलब इट इज अ कंटिन्यूअस प्रॉब्लम which happens in India. So if India has to become strong, then they should have good systems around it in order to identify where might be things going wrong. Okay, and detection of those and prevention of those, that is needed. So उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके थ्रू आप अपने एआई सिस्टम को या जेनएआई सिस्टम को ट्रेन करोगे। ठीक है, और क्या चाहिए? बैंक की इंटरनल पॉलिसीज हो सकती हैं। ठीक है, सो हर बैंक क्या करता है? ईच बैंक कन्वर्ट्स द पब्लिक फ्रेमवर्क इनटू इंटरनल थ्रेशोल्ड्स
वर्क फ्लोज एंड मॉनिटरिंग लॉजिक। ठीक है, तो अब ये जैसे जो गवर्नमेंट के पीएमएलए रूल्स हैं या जो केवाईसी मास्टर डायरेक्शन है, उस बेसिस पे बैंक अपने थ्रेशोल्ड सेट करती है। ठीक है, पब्लिक फ्रेमवर्क्स को यूज करके बैंक्स अपने लिए अपने रूल्स बनाती हैं। हर बैंक के कुछ कुछ थोड़े बहुत रूल्स हो सकते हैं, कुछ आरबीआई के मैंडेटेड हो सकते हैं, कुछ उनके सेल्फ क्रिएटेड हो सकते हैं, जिसमें कुछ थ्रेशोल्डिंग हो सकती है। ठीक है, यानी कोई बैंक थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्टर हो सकती है, कोई बैंक थोड़ी लो स्ट्रिक्टनेस के साथ काम कर सकती है। ठीक है, सो हमें हर रेस्पेक्टिव बैंक की पॉलिसी का भी फिर पता होना चाहिए अगर हमें एक ऐसी सिस्टमैटिक जेनएआई सिस्टम बिल्ड करना है तो। ठीक है, सो why do we need this? In order to understand the internal thresholds, in order to understand the workflows, and in order to implement the monitoring logic, कि किस मॉनिटरिंग लॉजिक के बेसिस पे हम ये ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करेंगे। Is that clear? So the third kind of data document which you guys need is bank policy, bank internal policy documents. ठीक है, तो अब तक हम देख चुके हैं कि हमें तीन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल चुका है। वन इज आरबीआई केवाईसी मास्टर डायरेक्शन डॉक्यूमेंट, सेकंड इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड रूल्स, एंड बैंक्स इंटरनल पॉलिसीज। ठीक है, नाउ व्हाट फोर्थ यू नीड, फोर्थ लेयर पे होगी आपकी एआई रिस्क मॉडल। ठीक है, नाउ यू विल हैव अ एआई मॉडल. So what this AI model will do, this will score customers and transactions using public rules, bank specific patterns and human review. ठीक है, फ्लैग कर दो, उसके बाद ह्यूमन उसे मार्क करेगा कि वेदर इट इज अ क्राइम और ओके। जैसे कई बार बैंक मैनेजर करते हैं ना, आप लोन अप्लाई करते हो, लोन अप्लाई होकर के बैंक में जाता है, बाद में एक लोन मैनेजर उसको रिव्यू करता है कि आपकी एप्लीकेशन ठीक है या नहीं, आपकी सारी चीजें पूरी हैं या नहीं, ठीक है, आपको लोन देना चाहिए या नहीं, कोई ऐसा गैप तो नहीं है जो सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, बट ऑब्वियसली आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ऑल ऑफ दैट। सो अब ये एआई रिस्क मॉडल क्या करेगा, ये कस्टमर की स्कोरिंग करेगा, एक रिस्क स्कोरिंग, ट्रांजैक्शंस की स्कोरिंग करेगा, और ये सारी स्कोरिंग किसके बेसिस पे होगी, जो पब्लिक रूल्स हमें मिले डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जो बैंक के इंटरनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पे हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन देयर वुड बी सम लेट्स से ह्यूमन ऑफिसर्स और ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिव्यू। ओके, आई बिलीव वी आर क्लियर टिल हियर। ठीक है, सो अब हमारी बात हो गई कि ये काम हमें करना है। ओके, क्लियर। अब कस्टमर के क्या रूल्स क्या है, केवाईसी रूल्स में क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्पेशल कस्टमर कैटेगरीज और कंट्रोल्स क्या हैं, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के क्या रूल्स हैं, ठीक है, वायर ट्रांसफर और स्पेशल कैटेगरी के क्या रूल्स हैं। इसके बाद ये रूल्स एक एआई कंप्लायंस मॉडल में कन्वर्ट कैसे होंगे, कैसे हम इसके थ्रू एक सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, हमें इनपुट मिलेगा, हम उसके ऊपर रूल चेकिंग करेंगे, हम उसके ऊपर रिस्क फीचर्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उस पर रिस्क स्कोरिंग करेंगे, फिर एक ह्यूमन एनालिस्ट उसको रिव्यू करेगा, उसके बाद हम एक एक्शन परफॉर्म करेंगे, और फाइनली हमारा सिस्टम एक एस्केलेशन जनरेट करेगा कि वेदर वी शुड एस्केलेट दिस ट्रांजैक्शन और नॉट। ओके, इज दैट क्लियर? सो ये सिस्टमैटिक हमें इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। ओके, नाउ सो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे क्या क्या रूल्स हैं। ओके, लेट्स इट नाउ, सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कस्टमर एंड केवाईसी रूल्स। ठीक है, कस्टमर और केवाईसी रूल्स हमें पता होने चाहिए। नाउ these rules determine who the customer is, how much risk they carry, and when stronger due diligence is required. Okay, I believe this is clear. ये तो केवाईसी रूल्स दे रखे हैं हमें आरबीआई ने, उसका क्या मतलब है कि वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कस्टमर कौन है। ठीक है, हाउ मच रिस्क दे कैरी, कितना उनके ऊपर रिस्क है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ रिस्की ट्रांजैक्शंस दे आर डूइंग। ठीक है, एंड when stronger due diligence is required. Okay, this is the third important point. ठीक है, तो जो आरबीआई के रूल्स हैं वो हमें आइडेंटिफाई मास्टर केवाईसी जो रूल्स हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कस्टमर कौन है, क्या ये कस्टमर रिस्की तो नहीं है,
और इस कस्टमर के ऊपर हमें कितना स्ट्रांग ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए इसकी ट्रांजैक्शंस के ऊपर। ओके, क्लियर। अब कोई जेन्युइन बहुत बड़ी कंपनीज भी तो हो सकती हैं जहां पे बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब जैसे मान लो कोई मदर डेयरी है या अमूल का बिजनेस है या कोई बड़ा आइसक्रीम का बिजनेस है या लेट्स से हल्दीराम्स का बिजनेस है, ठीक है, वहां तो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं डेली। वहां तो कोई छोटी ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो वो उनकी तो सारी ट्रांजैक्शंस ही ऐसे फ्लैग हो जाएंगी। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन है कस्टमर, किस तरीके की डीलिंग करता है, क्या उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उसका कितना रिस्क है उसकी ट्रांजैक्शंस में, और किस अकाउंट पे कितना स्ट्रॉन्गर ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए। आई एम सॉरी। ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर। ठीक है, अब समझो हमें क्या करना है। सो जो सबसे पहला रूल एरिया है जो हमें अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करना होगा वो क्या है? आपकी कस्टमर रिस्क कैटेगरी। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका कस्टमर किस रिस्क कैटेगरी में आएगा। ओके, ये आपका सिस्टम का पहला काम है। ठीक है, जो रूल्स हैं वो रूल सबसे पहले आइडेंटिफाई करने में ये मदद करते हैं कि आपका कस्टमर कौन सी रिस्क कैटेगरी में आएगा। हर बैंक के पास है, आपका जो अकाउंट बना हुआ है ना उसकी भी एक डिफाइंड कैटेगरी होगी, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है। ओके, नाउ सो रूल कहता है कस्टमर मस्ट बी क्लासिफाइड एज लो, मीडियम और हाई रिस्क। ठीक है, कस्टमर्स जो भी हैं बैंक के पास, कस्टमर्स इस 3 कैटेगरीज में आइडेंटिफाइड होने चाहिए। ओके, और कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, वो क्या बिजनेस करते हैं, ये भी क्लियर होता है बैंक के पास, वो किस ज्योग्राफी से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, वो क्या प्रोडक्ट बेचते हैं, उनके प्रोडक्ट की सेल्स का या डिलीवरी का चैनल कौन सा है, और वो किस तरीके की ट्रांजैक्शंस करते हैं, डू कैश ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और चेक ट्रांजैक्शंस, किस तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं। ओके, अब जैसे मान लो कोई चांदनी चौक में बैठा है, चांदनी चौक में तो बंदा जा रहा है, कैश सामान दे रहा है, कैश खरीद रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, रेगुलर कैश कैश डीलिंग चल रही है वहां पे। अब वो क्या करते हैं, एंड ऑफ द डे अपना सारा कैश कलेक्शन करते हैं, और या बाई एवरी आफ्टरनून दे कलेक्ट द कैश एंड सेंड इट टू बैंक। ठीक है, पिछले दिन का और आज के दिन का जितना हुआ सारा कैश कलेक्शन होकर के बैंक चला जाता है। ओके, और वो बैंक मतलब ले जाने के लिए अब क्या है कि अब वहां पे तो सिंगल ट्रांजैक्शन हो रही है डेली डेली और बड़े नंबर्स की ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली बैंक को ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई आप क्या बिजनेस करते हो, किस ज्योग्राफी में करते हो, क्या आप प्रोडक्ट बेचते हो, क्या आपके डिलीवरी चैनल्स हैं, और क्या आपका ट्रांजैक्शन का टाइप है। आई बिलीव दिस इज क्लियर। नाउ दूसरा रूल है कोई अनोनिमस या बेनामी अकाउंट नहीं होना चाहिए। ओके, ये दूसरा रूल है। बैंक को अ बैंक मस्ट नॉट ओपन अकाउंट्स इन अनोनिमस, फिक्शियस और बेनामी नेम्स। ठीक है, ये भी एक रूल है। ओके, फिर भी बैंक बैंक करते ही हैं, मतलब बैंक में लोग बैठे होते हैं, करते हैं ठीक है, सिस्टम। लेकिन ये रूल है कि दे शुड नॉट बी एनी अनोनिमस और बेनामी अकाउंट। जो बेटिंग वेटिंग ये सारी चलती हैं सब बेनामी अकाउंटों से ही चलती हैं। गेमिंग जो चलती है, मटका चलता है, और बहुत सारे वो चलते हैं, कौन सा नंबर आएगा, गेम इंडिया, गेम किंग इंडिया, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे हैं, कसिनो एंड तीन पत्ती, रमी, पता नहीं क्या क्या चलता है, मतलब अ लॉट हैपेंस। ठीक है, एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, दे मेक अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शनल मनी। राखी कह रही है सर मेरे को भी खुलवा दो वही धंधा ओके, मैं जब बोला बहुत पैसा आ रहा तो राखी की आंखें ऐसे खुल गई एकदम, कहाँ है बताओ ओके, ठीक है, नाउ लेट्स सी। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आरबीआई ने बैंक को कह रखा है कि आप पहले अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करो कि ये किस कैटेगरी का कस्टमर है, और आपके पास इसकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी आइडेंटिटी, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट, चैनल, बिजनेस,
किस तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं, यू शुड हैव अ प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर, ठीक है। अब बताओ, इतने सारे बैंक अकाउंट्स डेली खुल रहे हैं, तो obviously we need to have a good system and a system which can negotiate, a system which can communicate well, ठीक है। It could be an AI bot or a chat bot like stuff. इसके लिए हमें GenAI की जरूरत है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिसके थ्रू हम ये सारी चीजों को डिजिटाइज कर सकें और प्रॉपर, ठीक है, और धीरे धीरे होंगी, एंड अकॉर्डिंगली विल बी मेकिंग मनी अराउंड इट, बिल्डिंग सच प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। इसके बाद में क्या है, ठीक है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस बिफोर रिलेशनशिप। ओके, आप कोई भी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले आप उसका ड्यू डिलिजेंस करवाइए, ठीक है। ये आरबीआई ने बैंक्स को मैंडेट कर रखा है, इसलिए अगर आजकल देखोगे आप, कोई भी अकाउंट खुलने से पहले ना बैंक का जो स्टाफ है ना आपके घर आता है। पहले तो ऐसे खुल जाते थे, बट आजकल बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी दे विल कम टू योर होम, और उनके पास सर्टेन पॉलिसीज हैं कि वो ऐप से फोटो जब लेंगे तो वहीं का लोकेशन, जीपीएस इनेबल्ड इमेज होना चाहिए, वहीं से उसकी लोकेशन जाएगी, दैट यू हैव एक्चुअली गॉन देयर एंड वेरीफाइड द कस्टमर, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग नाउ। अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टर हो गए हैं बैंक अकाउंट्स आज की डेट में। आप ऐसे ही फालतू फर्जी बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। पहले तो खुल जाते थे, पहले तो लोग खुलवा लेते थे, किसी के नाम से कुछ भी डॉक्यूमेंट लगा लगू करके अकाउंट खुल गया, ठीक है। और अब लेकिन वैसा बहुत मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे। कुछ बैंक्स तो अभी भी करते होंगे, या कुछ लोग तो अभी भी करते होंगे, लोगों के पास, सबके पास सिस्टम के लूप होल्स हो जाते हैं, ठीक है। बट मतलब eventually it is becoming a little harder to get things done. Okay, now, so no account or transaction relationship should begin without customer due diligence, ठीक है। customer due diligence is very very important, ठीक है। this is a rule, no account or transaction relationship should begin without customer due diligence। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि अगर जेनीआई सिस्टम अगर वेरीफाई करता रहे कि ठीक है, ये कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस अप्रूव्ड है, आर वी डूइंग कंटिन्यूअस ड्यू डिलिजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट, कीप दिस अकाउंट एक्टिव। अगर जहां पे भी ड्यू डिलिजेंस फेल होता है, जस्ट ईदर लेट देम नॉट हैव एन अकाउंट, एंड इन केस इफ देयर इज एन अकाउंट देयर, मार्क इट इनएक्टिव। ओके, ब्लॉक दैट अकाउंट, फ्रीज दैट अकाउंट, मार्क दैट अकाउंट इनएक्टिव, ठीक है। तो देयर कुड बी सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन बी डन इन दिस वे। Then what you have is KYC triggers. Okay, know your customer triggers. And what is that? So KYC trigger ये कहता है identification is required for account opening. ठीक है, आपको अपनी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, एनी ऑफ दोज इज रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट ओपनिंग। अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हो, या कोई इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, या वॉक इन ट्रांजैक्शंस हैं आपकी 50,000 से ज्यादा, ठीक है, या कोई सस्पेक्टेड लिंक्ड ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। सो इन सभी के लिए आपको अपना आईडी, पैन कार्ड देना पड़ता है, ठीक है। आप देखो आजकल जब जाते हैं, अगर 50,000 से ऊपर का कुछ भी करना है तो बोलता है सर आधार कार्ड और पैन कार्ड दो अपना, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड दे अटैच द आईडी। तो आईडी अटैच करने का मतलब क्या है, दे आर फॉलोइंग द गाइडलाइन की, ठीक है, दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। कई बार होता है ना, जैसे हम बैंक जाते हैं, हम कहते हैं भाई दो चेक लो, मान लो 5 लाख रुपए निकाल दो, ठीक है। तो कहता है सर आईडी। तो फिर बंदा कहता है अरे तू मेरे को नहीं जानता है, मेरा अकाउंट है यहाँ पे, मैं आईडी दूंगा अब तुझे। तब वो बेचारा क्या करे, मतलब ठीक है, ही नीड्स एन आईडी, फिर वो भगा देता है, कहता है चल भाग यहाँ से, ठीक है। बिकॉज because the ID is required. It is a mandate from RBI and they are continuously being monitored. मतलब इनफैक्ट कैशियर जहाँ पे होता है आजकल, वहां पे कैमराज एंड ऑल भी हैं, सेंट्रलाइज्ड कैमराज आर कनेक्टेड, दे हैव अ लॉट ऑफ अलार्म फैसिलिटीज एंड मतलब एट सर्टेन प्लेसेस अब धीरे धीरे मतलब इट इज गोइंग गुड, मतलब बैंक्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अभी हर जगह पे नहीं है मतलब, बट जो मेट्रो सिटीज हैं या जो हाई ट्रैफिक एरियाज हैं, तो वहां तो खैर चीजें आप धीरे धीरे मतलब बढ़ रही हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट बहादुरगढ़ और उस साइड में कैसा क्या चल रहा है बैंकों का सिस्टम।
सर मेट्रो सिटी है पाथरुकुड सर। वैसे तो सब जगह ही वैलिड है सर, यही रूल चल रहा है सब। नहीं, मुझे पता चला तरुण का कोई और है सर, कोई बात नहीं, आपको खुलवाना है अकाउंट, मैं कॉल कर देता हूँ, खुल जाएगा आपका ऐसे ही, कितने नहीं सर, अब तो लगे बताओ स्ट्रिक्टनेस हो गई है सर। तो। 50,000 से ऊपर निकालते ही सर केवाईसी मांग रहे हैं बंदे। और इसमें चेक के साथ तो एक आईडी देनी पड़ती है, साइन वगैरह करके ना, फोटोकॉपी। करेक्ट, बिल्कुल। सो ऑल ऑफ दीज आर मैंडेटरी। ठीक है, तो अब तुम्हें ये भी पता चल रहा है कि क्यों करते हैं। ठीक है, बिकॉज देर इज अ मैंडेट फ्रॉम आरबीआई एंड, और अब आगे क्या है कि धीरे धीरे ट्रांजैक्शनल देखो डिजिटल होती जा रही है थ्रू एप्स। अब आज थोड़े समय बाद जरूरी नहीं कि आपको बैंक जाना ही है कोई काम करने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन डू ऑल दोज डिजिटल ट्रांजैक्शंस। अब तो आज मैं देख रहा था कि बिटकॉइंस की ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है इंटरनेशनल। मतलब वैसे भी होती थी बट इट वाज नॉट एक्सचेंज बेस्ड, जो एक्सचेंजेस थे वो प्राइवेट एक्सचेंजेस हुआ करते थे। अब तो गवर्नमेंट ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे स्टॉक मार्केट है where you trade stocks. Similarly, they are officially releasing. मैं आज भी अभी देख रहा था, मैं $16,000 का अभी वो चल रहा है उसका, क्या बोलते हैं, बिटकॉइंस एंड ऑल। सो मतलब दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ। तो ये धीरे धीरे डिजिटल इकोनॉमी बिल्ड होती जा रही है। इनफैक्ट आई वाज गोइंग थ्रू विद दिस कि आई थिंक स्विफ्ट ने अराउंड 17 बैंक्स के लिए एक वो साइन हुआ है कि वो सारा ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम के ऊपर ट्रांजैक्शंस होंगी उनकी, जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस होनी है। एंड 17 बिगर बैंक्स हैव साइंड अप फॉर दैट। सो इवेंचुअली मतलब थिंग्स आर गोइंग फास्टर। सो जब ये जितने जितने डिजिटल सिस्टम्स डिप्लॉय होने लग जाएंगे ना, आपको और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ लेट्स से जेन एआई एप्लीकेशंस व्हिच विल डू अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर यू। ठीक है, तो बट जो बनाएगा उसको पता तो होना चाहिए कि क्या क्या है, मतलब व्हाट ऑल रूल्स आर देयर व्हिच आई हैव टू इंश्योर दैट माय सॉफ्टवेयर हैज इट। ठीक है, नहीं तो जब बैंक के सामने ले जाएंगे तो बैंक वाले पूछेगा इसमें ये है, तो बोलेगा नहीं है, अगर नहीं है तो चलो यहां से। ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं है क्या बनाना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हु इज द रेगुलेटर, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट माय सिस्टम शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट। okay, and then it will become compliant for these regularized banks। अगर बैंक्स को कुछ बेचना है तो आपके पास कंप्लायंट प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, और कंप्लायंस कैसे होगा, ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे फीचर्स इनेबल्ड होने चाहिए आपके मतलब टूल्स के अंदर। ठीक है, और जब नए मैंडेट्स आते जाएं, वो नए मैंडेट्स आप अपने टूल के अंदर इंटीग्रेट कर पाओ, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, and then you can make a good business out of it, as in मतलब even if you are working for a larger organization, you are actually understanding, ठीक है, कि all these things are important and that needs to be incorporated into the product। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने एक प्रॉब्लम पकड़ी है, उस प्रॉब्लम के अराउंड हम सॉल्यूशन बिल्ड करने के लिए सोच रहे हैं, विच इज एआई फॉर फाइनेंशियल रिस्क कंप्लायंस। और उसके लिए हम रूल्स को समझ रहे हैं। ओके, आई बिलीव कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, कि क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या हमें इंश्योर करने पड़ेंगे इन अवर सिस्टम। ठीक है, वाइल वी विल बी बिल्डिंग द सिस्टम नाउ। अब इसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरिंग कंसर्न। दिस इज द फिफ्थ रूल एरिया। सब क्या होता है कि इफ अ कस्टमर अपियर्स टू स्प्लिट अ ट्रांजैक्शन इनटू मल्टीपल अमाउंट्स बिलो 50,000, द बैंक शुड ट्रीट इट एज अ रिस्क सिग्नल। ठीक है, जैसे मैं कह रहा था कि लोग क्या करते हैं, 50,000 की लिमिट है तो 49,000 की ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक है, तो 49,000 की प्रॉब्लम क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम, कि यू आर ट्राइंग टू रीस्ट्रक्चर योर ट्रांजैक्शन इन अ वे सो दैट इट बाईपासेस द बैंकिंग प्रोटेक्शन सिस्टम। भेजा आपने 1 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, 49,000, 49,000, 2,000 इस तरीके से भेजा, तो अब बैंक का तो फ्लैग नहीं है, क्योंकि अब तो उसमें कोई आधार नहीं मांगना पड़ा उसको, ये वो आपने 1 लाख रुपए पहुंचा भी दिया और आपको आईडी भी नहीं लगी और आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुई, और आप कैश ले आए और कैश से खेल गए। तो अब अगर ये स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम अगर है तो भी आपका सिस्टम डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, कि आपने 30,000 भेजा, अब भाई कैशियर को तो याद नहीं है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले 30,000 की ट्रांजैक्शन की थी, उससे पहले आप 25,000 की ट्रांजैक्शन की थी, आपको तो पता नहीं, उसको तो पता नहीं है। ठीक है, पर सिस्टम तो ये हिस्ट्री मेंटेन कर सकता है। ठीक है, कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द रीसेंट ट्रांजैक्शन एंड विद इन व्हाट टाइम दैट हैपेंड।
ओके, क्लियर? सो हमारा सिस्टम स्ट्रक्चरिंग कंसर्न को भी आइडेंटिफिकेशन करने की कैपेसिटी रखना चाहिए। क्लियर? नाउ ठीक है, सो इफ अ कस्टमर स्प्लिट्स अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व स्प्लिटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, then the bank should treat it as a risk signal. This is also very important. ओके, तो आज हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें जो जेनएआई सिस्टम बिल्ड करना है उसके लिए हमें कस्टमर और केवाईसी रूल्स को प्रॉपर्ली डिप्लॉय करवाना पड़ेगा। क्लियर? दीज आर सर्टेन रूल्स विच वी शुड बी अवेयर ऑफ in order to make a financial risk compliance system. Okay, then there are some special customer categories and controls. Okay, ये क्या है? Some customer type require additional limits or stronger checks, okay, because they carry extra compliance risk. ठीक है, क्या हो सकता है? Let's say एक स्पेशल रूल एरिया है विच इज स्मॉल अकाउंट लिमिट्स। ठीक है, छोटे अकाउंट की लिमिट्स क्या है? इसका मतलब है अ स्मॉल अकाउंट हैज लिमिट्स ऑन एनुअल क्रेडिट्स। ठीक है, इसलिए आप देखो बैंक ना अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफर करता है आजकल। सेविंग्स अकाउंट का ये प्लान है, वो प्लान है, प्रीमियम प्लान है, प्रेस्टीज प्लान है, डायमंड प्लान है, गोल्ड प्लान है। सो डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द कस्टमर। ओके, सो लेट्स से अ स्मॉल अकाउंट हैज लिमिट्स ऑन एनुअल क्रेडिट्स, मंथली विड्रॉवल्स कितना कर सकते हो आप, कितने ट्रांसफर्स कर सकते हो आप, ठीक है, एंड ऑन द बैलेंस। जैसे आजकल आप देखो एक मिनिमम बैलेंस अकाउंट खुल गया है, या एक आपको अपने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ अकाउंट में उतना बैलेंस रखना है कि हर महीने मिनिमम 75,000 रुपए का ट्रांजैक्शन आपको उसके अंदर करना ही है। ठीक है, सो आई हैव वन सच अकाउंट जिसमें प्रेस्टीज का एक्सेस अकाउंट है, जिसमें मेरे को हर महीने 75,000 की ट्रांजैक्शन उसमें करनी है, नहीं तो मेरे से 500 रुपए लेगा वो अगर मैंने नहीं करी। ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टेन फैसिलिटीज विच दे गिव। ओके, सो अब क्या है कि so there are different types of accounts and they have different types of limits, and that understanding also the system should have, क्योंकि जो डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं वो अलग अलग अकाउंट कैटेगरी में अलग तरीके से अप्लाई होंगे। ठीक है, अब मेरे अकाउंट की कैटेगरी में 50,000 की ट्रांजैक्शन वाला मतलब यार एक जो लिमिटेड ट्रांजैक्शन है उसका रूल नहीं है। आई कैन डू मोर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, बिकॉज आई हैव ऑप्टेड फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ अकाउंट। सो अब जब आपने जेनीआई सिस्टम बनाया और मान लो मैंने ट्रांजैक्शन करी, तो